اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اپنی نئی سیریز نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ تیسرا حصہ خاصی تاخیر کے ساتھ کچھ دنوں کے گیپ کے بعد اپلوڈ ہو رہا ہے، جس کی وجہ نجی مصروفیات تھیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ پہلے دو حصوں میں ہم نے نہج البلاغہ کا جو خطبہ نمبر 1 ہے، جسے خطبہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس کے دو حصوں میں مولا کائنات کے دو مختلف عنوانات سے جو شارٹ خطبے ہیں، جو احوال مولا نے بیان کیا، تخلیق کائنات، تخلیق ملائکہ، تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت، یہ سارے احوال جو مولا نے بیان کی، ہم نے پہلے دو حصوں میں ان کا ترجمہ اور مختصراً تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کے حصہ میں اسی خطبے کی جو آگے کڑیاں ہیں، جیسے کہ لاسٹ ہم نے جو دوسرا حصہ اختتام کیا تھا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے انتخاب کے حوالے سے، اور ان کو جس طرح سے خدائے بزرگ و برتر نے دنیا پر بھیجوایا رشد و ہدایت کا سامان دے کر بنی نو بشر کے لیے، اس کی مختصراً جو مولا نے روشنی ڈالی، اس احوال، اس کیفیت، اس زمانے کے اس کے اوپر، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور آج کے جو ہے وہ مختصراً بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر قرآن اور احکام شریعت کے حوالے سے جو مولا نے اس خطبے میں گفتگو فرمائی، جو بیان کیا، پھر حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے، اور پھر ایک مختصراً آخری ٹکڑا جو اس خطبے کی کڑی کا آخری جو حصہ ہے وہ جنگ صفین سے واپسی کے اوپر مولا کائنات کی گفتگو ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ملتمس ہے کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعہ سے تبلیغاتی کاموں کو فروغ دینا چاہتے ہیں، مکتب کے قرآن و اہل بیت سے ثابت شدہ عقائد کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور ان سے آگاہی کے لیے خاص کر نوجوان طبقہ کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ تو آپ سے ملتمس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اپنے احباب میں اس کا لنک بھی شیئر کیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی خطبے کی طرف، جو بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصراً مولا نے بیان فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مالک نے یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے اور اپنی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور تھیں اور ولادت نہایت مبارک تھی۔ اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ ہر کوئی اپنا اپنا عقیدہ گڑے بیٹھا تھا، کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، جیسا کہ آج کل بھی کچھ بدبخت جو ہے خدا کو اس کی افضل ترین مخلوق میں حلول کرنے کا بول دیتے ہیں۔ جی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا خدا کیسا ہے تو انہوں نے کہا جی ایسا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ جہالیت جو ہے اس وقت اپنی پیک پر تھی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا، اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا، اور کوئی اپنے جو دیوی دیوتا ہیں جی جو بت یہ تراشتے تھے مختلف ناموں سے، ان کو خدا کا نائب بتا رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذریعے یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو گمراہی سے ہدایت کی طرف روانہ کیا اور جہالت سے باہر نکال لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کر لیا، آپ کو مصائب دنیا سے نجات دلا دی اور نہایت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا، اور امت میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا، کہ انہوں نے بھی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کا مشہور خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ اس میں آپ نے واضح طور پہ پوری امت کو قرآن و اہل بیت کے حوالے کیا تھا۔ تو یہ اسی طرف مولا کائنات کا اشارہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی لاوارث نہیں چھوڑا، کسی نہ کسی وصی کے، کسی نہ کسی نائب کے اپنی قوم کو حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اور آسمانوں کی طرف سفر اختیار کیا۔ جی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سرکار یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن اور احکام شریعت کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان تمہارے پروردگار کی کتاب کو چھوڑا ہے،
जिस के हलाल व हराम, फ़राइज़ व फ़ज़ाइल, नासिख़ व मनसूख़, रुख़सत व अज़ीमत, ख़ास व आम, इबरत व अमसाल, मुतलक़ व मक़ीद, महकम व मुतशाबा, सब को वाज़िया कर दिया गया था और गुत्थियों को सुलझा दिया गया था। इसमें बाज़ आयात हैं जिनके इल्म का अहद लिया गया है यानी कुरान में, और बाज़ से नावाक़फ़ियत को माफ़ कर दिया गया है। बाज़ अहकाम के फ़र्ज़ का किताब में ज़िक्र किया गया है और सुन्नत से इनके मनसूख़ होने का इल्म हासिल हुआ है, या सुन्नत में इनके वजूब का ज़िक्र हुआ है जबकि किताब में तर्क करने की आज़ादी का ज़िक्र था। बाज़ अहकाम एक वक्त में वाजिब हुए हैं और मुस्तक़बिल में ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके महरमात में बाज़ पर जहन्नम की सज़ा सुनाई गई है और बाज़ गुनाहान सगीरा हैं जिनकी बख्शिश की उम्मीद दिलाई गई है। बाज़ अहकाम हैं जिनका मुख्तसर भी काबिल कबूल है और ज़्यादा की भी गुंजाइश पाई जाती है। सुभान अल्लाह। ये मौला कायनात अहकाम शरीयत जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से जो कुरान में जिनका ज़िक्र है उसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं। इसके बाद आप फरमाते हैं कि परवरदिगार ने तुम लोगों पर हज बैतुल हराम को वाजिब करार दिया है जो तुम में से इस्तिताअत रखते हैं, जिसे लोगों के लिए किबला बनाया है और जहाँ लोग प्यासे जानवरों की तरह बेताब व दाना वारद होते हैं और वैसा उन्स रखते हैं जैसे कबूतर अपने आशियाना से रखता है। हज बैतुल्लाह को मालिक ने अपनी अज़मत के सामने झुकने की इलामत और अपनी इज़्ज़त के इकान की निशानी करार दिया है। इसने मखलूक़ात में से इन बंदों का इंतखाब किया है जो इसकी आवाज़ सुनकर लब्बैक कहते हैं और इसके कलमात की तस्दीक करते हैं। इन्होंने अम्बिया के मवाक़िफ़ में वकूफ़ किया है और तवाफ़ अर्श करने वाले फ़रिश्तों का सा अंदाज़ इख्तियार किया है। ये लोग अपनी इबादत के मामला में बराबर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और माग़फ़िरत की वादागाह की तरफ तेज़ी से सबक़त कर रहे हैं। ये हज बैतुल्लाह जो खालिस्तन रज़ाए इलाही के लिए किया जाता है और जो करने वाले हैं ये उनकी ख़ुसूसियात जनाब अमीर अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। इसके बाद फरमाते हैं परवरदिगार ने काबा को इस्लाम की निशानी और बेपनाह अफराद की पनाहगाह करार दिया है। इसके हज को फ़र्ज़ किया है और इसके हक़ को वाजिब करार दिया है और तुम्हारे ऊपर इस घर की हाज़िरी को लिख दिया है और साफ़ ऐलान कर दिया है कि अल्लाह के लिए लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसके घर का हज करें जिसके पास भी इस राह को तय करने की इस्तिताअत पाई जाती हो। इसके बाद सफ़ीन से वापसी पर आपके खुतबे का एक हिस्सा सैयद रज़ी शरीफ ने इसी खुतबा तौहीद के आखिर में नकल किया है, जिसमें बैसत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लोगों के हालात, आले रसूल के औसाफ और दूसरे अफराद की कैफियत का ज़िक्र किया गया है। इस खुतबा की शुरुआत होती है, आप फरमाते हैं कि मैं परवरदिगार दो आलम की हम्द करता हूँ और इसकी नेमतों के तकमील के लिए और इसकी इज़्ज़त के सामने सर तस्लीम खम करते हुए मैं इसकी नाफरमानी से तहफ़्फ़ुज़ और पनाह चाहता हूँ। ये जनाब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी मासूम हस्ती कह रही है कि मैं इसकी नाफरमानियों से तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। तो हमें गौर करना चाहिए, हमें जो कि मतलब गुनाहों से लुथड़े हुए हैं, कि हम अल्लाह ताला से दिन में कितनी दफ़ा अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, इस तरफ मुतवज्जो होते हैं। और फिर फरमाते हैं कि और इससे मदद मांगता हूँ कि मैं इसी की कफ़ायत व कफ़ालत का मोहताज हूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह की कफ़ायत व कफ़ालत का मोहताज हूँ और मदद भी सिर्फ़ उसी से मांगता हूँ। ये हमारे लिए नमूने अमल हैं हस्तियाँ। वो जिसे हिदायत दे दे वो गुमराह नहीं हो सकता और वो जिसका दुश्मन हो जाए उसको भला कहाँ पनाह मिल सकती है। सुभान अल्लाह। ज़रा मौला के अल्फाज पे गौर कीजिए और इससे तरबियत का अंसर लीजिए कि आप फरमा रहे हैं कि जिसे वो हिदायत दे दे, कुरान के ज़रिए दे दे, अम्बिया के ज़रिए दे दे, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दे दे, अपने दीन मुबीन के ज़रिए दे दे, वो गुमराह नहीं हो सकता। और जो अपने गुनाहों और गफलतों और जनाब हक़ से दुश्मनी की बिना पर अल्लाह ताला का दुश्मन हो जाए और अल्लाह भी उसे दुश्मन कंसीडर कर ले, मान ले, यानी मोहलत ख़त्म हो जाए और पक्का वो दुश्मनान खुदा की लिस्ट में आ जाए, तो फिर मौला फरमाते हैं कि उसको भला पनाह मिल भी कहाँ सकती है। इसके बाद आप फरमाते हैं जिसके लिए वो काफ़ी हो जाए, यानी अल्लाह। ये अब सुने, शान तौहीद सुने मौला कायनात की ज़बान से और अपने अपने अकायद का रिव्यू कीजिए, जायज़ा लीजिए बशमूल मेरे। फरमाते हैं जिसके लिए वो काफ़ी हो जाए वो किसी का मोहताज नहीं। इस हमद का पल्ला हर बावज़न शय से गरां तर है और ये सरमाया हर ख़जाना से ज़्यादा कीमती है जो हमद ज़ात बारी ताला के लिए की जाती है। फिर फरमाते हैं मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और ये वो गवाही है जिसके खलास का इम्तिहान हो चुका और जिसका निचोड़ अक़ीदा का जुज़ बन चुका। मैं इस गवाही से ता हयात व बस्ता रहूँगा कि वो वाहदा उला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। और खुदा के वास्ते अमीरुल मोमिनीन के नाम पर गमियाँ खुशियाँ मनाने वालों, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से दूर दराज किस्म की उम्मीदें लगाने वालों, अमीरुल मोमिनीन की सुन भी लो।
खुदाए वाहद के उसकी तौहीद के ज़िम्न में जो मौला कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, जो तारफ़ करवा रहे हैं, उससे कुछ सीख भी लो। और ये रसूमाती अकायद से और ये हिंदुआना जो रस्म व रवाज हमने अपना लिए हैं, जगह जगह पे हमने जनाब, अब क्या उस पर बात की जाए। बहरहाल आगे मौला कायनात फरमाते हैं, मैं इस गवाही से ताहयात वबस्ता रहूँगा और इसी को रोज़े क़यामत और उसके होलनाक मरहल के लिए ज़ख़ीरा कर लूँगा। यानी इस गवाही को कि अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर फरमाते हैं कि यही ईमान की मुस्तहकम बुनियाद है और यही नेकियों का आगाज़ यहीं से है। यानी जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक नहीं मान लेते, उसकी सिफ़ात में, उसकी इबादात में, जी हर चीज़ में उसको यकता नहीं, उसकी तख्लीक में उसको यकता खालिक राज़िक मालिक नहीं मान लेते, नेकियों का आगाज़, उसके सफ़र का आगाज़ नहीं हो सकता। इसके बाद फरमाते हैं, और इसी में रहमान की मर्ज़ी और शैतान की तबाही का राज मज़मिर है। और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। इन्हें परवरदिगार ने मशहूर दीन और रोशन किताब, ज़िया पाश नूर, चमकदार रोशनी और वाज़ेह अमर के साथ भेजा है, ताकि शुबात ज़ाहिल हो जाएं और दलाइल के ज़रिए हुज्जत तमाम की जा सके, आयात के ज़रिए होशियार बनाया जा सके और मसालों के ज़रिए डराया जा सके। ये बेसत इस वक्त हुई है जब लोग ऐसे फितरों में मुब्तला थे जैसे रसीमान दीन टूट चुकी थी, जिनसे रसीमान दीन यानी दीन की रस्सी जो है टूट चुकी थी, यकीन के सतून हिल चुके थे, असूल में शदीद इख्तलाफ था और अमूर में सख्त इंतशार था, मुश्किलात से निकलने के रास्ते तंग व तरीक हो गए थे, हिदायत गुमनाम थी और गुमराही बरसरे आम थी, रहमान की मासियत हो रही थी, शैतान की नुसरत की जा रही थी, ईमान यकसर नज़रअंदाज हो गया था, इसके सतून गिर गए थे और आसार नाकाबिल शनाख्त होते चले जा रहे थे, रास्ते मिट गए थे और शाहराएँ बेनिशान हो गई थीं। लोग शैतान की इताअत में इसी के रास्ता पर चल रहे थे और इसी के चश्मों पर वारिद हो रहे थे। इन्हीं की वजह से शैतान के परचम लहरा रहे थे और इसके अलम सर बुलंद थे। ये लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जिन्होंने इन्हें पैरों तले रोन दिया था और सुमों से कुचल दिया था और ख़ुद अपने पंजों के बल खड़े हो गए थे। ये लोग फितनों में हैरान और सरगर्दां और जहल और फ़रेब खोरदा थे। परवरदिगार ने इन्हें इस घर मक्का में भेजा जो बेहतरीन मकान था, लेकिन हमसाए बदतरीन थे। यानी मौला कायनात जो कुफार मुशरिकीन थे मक्का के, उनके बारे में फरमा रहे हैं, जिनकी नींद बेदारी थी और जिनका सुरमा आंसू, वो सरजमीन जहाँ आलम को लगाम लगी हुई थी और जाहिलीन मोहतरम थे, जो आजकल भी ऐसे ही खाका कुछ सामने आ रहा है। फिर फरमाते हैं कि आले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आले मोहम्मद, ये लोग राज इलाही की मंजिल और अमर दीन का मुलजा व मावा हैं। यही इल्म खुदा के मरकज़ हैं और हुक्म खुदा की पनाह गाहें हैं। किताबों ने यही पनाह ली है और दीन के यही कोहे गिरां हैं। इनके ज़रिए परवरदिगार ने दीन की पुश्त की कजी को सीधा कर दिया और इन्हीं के ज़रिए इसके जोड़ बनकर राशा का इलाज किया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये मौजू आज यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा इस कोशिश को आपके सामने नहजुल बलागा को पढ़ के, हालांकि पढ़ तो आप ख़ुद भी सकते हैं उर्दू के उसमें, लेकिन हम रग़बत दिलवाना चाहते हैं ख़ुसूसन नौजवान तबका को कि आएँ कुरान की तरफ, आएँ नहजुल बलागा की तरफ, आएँ सहीफ़ा सजादिया की तरफ, सुन्नत और सीरत की दूसरी कुतब की तरफ, और अपने अपने कायद का रिव्यू लीजिए, जायज़ा लीजिए, अपने कायद को तालीमात कुरान व अहले बैत के मुताबिक अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, ना कि इन गाली नुसैरी और बेअमल और बदअमल ज़ाकरीन के हत्थे चढ़ के अपने अकायद का बेड़ा गर्क करवाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़मान जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानिया को पढ़ने, समझने, सबसे बढ़कर ये कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।